So start with NX5. So NX5 is basically your garbage. NX1 we done oil, NX2 noxious liquid substance, NX3 harmful substances, NX4 sewage, NX5 is garbage, and NX6 is air pollution. So if you see the importance of NX5, if you have a paper bus ticket, it will take about 2 to 4 weeks to decompose. Similarly, if you have newspaper which is thrown in your balconies, it will decompose in 4 weeks. Cotton rag will decompose in 1 to 5 months. Rope will decompose in 3 to 14 months. Woolen cloth will decompose in 1 year. Painted wood in 13 years. Tin can of is 100 years, which is of your pineapple juice or something. Aluminum cans, which is Coca-Cola, will dissolve in 200 to 500 years. Plastic bottles can take 450 years to 1000 years to decompose. So your NX1 came in 1983, NX2 1983, NX3 in 1992, NX4 2003, NX5 in 1988, and NX6 in 2005. Now your garbage from ships can be deadly for marine life because they can kill your marine species, because your ships and mammals mistake plastics for food, and it goes in their windpipe and it suffocates them. Similarly, a lot of whales have been found dead with plastic in their stomach. So MARPOL NX5 seeks to eliminate the amount of garbage being discharged into sea. All ships of whatever operating from marine environment, like your merchant ships, floating platforms, pleasure vessels, yachts, are all prohibited from throwing garbage into the sea. So the MARPOL NX5 prohibits your discharge of all garbage into sea except provided otherwise in Regulation 456, which are related to food waste, cargo residues, cleaning agents, additives, and animal carcasses. Animal carcasses are basically dead animals. So unlike under NX4, garbage includes your food, domestic, operational waste, plastics, cargo residues, incinerator ashes, cooking oil, fishing gear, animal carcasses which are generated during normal operation of ship. So it does not include fresh fish if you are fishing there. So the fresh fish thrown back into the sea is not garbage. So effectively, your ships to comply with your discharge requirement on MARPOL depends on availability of adequate port reception facility, especially in your special areas. This is required. So your governments are supposed to provide port reception facility, and if they don't have, then they have to inform that these ports don't have port reception facility so that the company will make their own arrangements. Now there are 8 special areas in your MARPOL NX5. Baltic Sea is again in this, Antarctic area is again in this, in MARPOL NX5. The rest all are Mediterranean Sea, Baltic Sea, Black Sea, Red Sea, Gulf, North Sea, widened Caribbean, and Antarctic Sea. So this has come sometimes in your exam, why special areas are adopted. So special areas are recognized technical reasons relating to oceanographic reasons. Number 2, ecological conditions. Number 3, particular character of traffic there, like heavy maritime traffic. Number 4, where there is low water exchange, that means high and low tide are very less. Water exchange is very low. Number 5 is extreme ice states like in Antarctic. Number 6, where there are endangered marine species like maybe whaling and other species. Or you are having adoption of special mandatory methods to prevent marine pollution by garbage. So these are your
6 conditions which determines your special areas. So these are your special areas: your Mediterranean Sea, Arctic Sea, Red Sea, Antarctic Sea, Gulf area, Black Sea, Baltic Sea, North Sea, and wider Caribbean, including Gulf of Mexico and Caribbean Sea. So special area is a sea area which recognizes technical reasons in relation to oceanographic, ecological character of traffic in that area, adoption of mandatory methods for prevention of it. So it prohibits your dumping of garbage into sea other than food waste. Now we'll come to the detail of this discharge criteria. I'll just enlarge this. So this is your Annex 5 discharge criteria. You have to make this kind of table. In this table, you'll have type of garbage, ships under special, outside special area, in ships within special area, how they dump into sea, offshore platforms, all ships that is OSVs or your offshore supply vessels operating within 400 meters of these offshore platforms. Now, if you have food waste here, so that is from your galley. So when you are throwing food waste, you cannot throw it directly. If it is not ground or comminuted, then you have to throw it more than 12 nautical miles from land. But if it is within 3 nautical miles or greater than 3 nautical miles, less than 3 nautical miles, you can throw. If it is more than 3 nautical miles, then you have to grind it by a grinder. And you can discharge outside special area greater than 3 nautical miles, greater than equal to 3 nautical miles from nearest land when you are en route. When you are within a special area, those 8 areas, then you have to discharge greater than equal to 12 nautical miles from nearest land. You have to be en route. If you are from offshore platforms and the ships or offshore supply vessels within 500 meters of those offshore platforms, the discharge is permitted greater than equal to 12 nautical miles from nearest land. That is for food waste, which is comminuted or ground. Now the second type of food waste is, which is not comminuted or ground, that is your bones and all. You're not putting in grinder. So how you can throw? So if you are outside special area, you can discharge food waste which is not ground or comminuted, provided that you are more than 12 nautical miles from nearest land. And you are en route. You're not at anchorage, but en route. For ships within special area, you cannot discharge. Within special area, if it is not ground, you cannot discharge into sea. The red one means prohibited discharge. For offshore platforms, you can't discharge when you are throwing your bones of fish or animal directly into the sea. That has to be through the grinder, otherwise you can't discharge. So these two are the food criteria or food waste criteria. Now we come to cargo residues. So have you understood food waste criteria or should I repeat? समझ आ गया सबको कि नहीं? यस सर, आ गया. ये क्लियर है ना?
ओके, अब आता है कार्गो रेसिड्यूज नॉट कंटेन इन वॉश वाटर एंड कार्गो रेसिड्यूज कंटेन इन वॉश वाटर। इसके सामने नंबर लिखा हुआ है 1। 1 का मतलब है नॉन HME। HME का मतलब है हार्मफुल टू मरीन एनवायरनमेंट। तो अगर वो नॉन HME है कार्गो रेसिड्यू, सपोज हमने होल्ड की सफाई कर दी, होल्ड से डिस्चार्ज कर दिया सल्फर, अब उसमें पानी से हमने होज मारा, अब उसका पानी किधर डिस्चार्ज करें? तो जो कार्गो रेसिड्यूज नॉट कंटेन इन वॉश वाटर, सपोज वो वॉशिंग की लेकिन उसमें कार्गो रेसिड्यू नहीं है और वो नॉन हार्मफुल टू मरीन एनवायरनमेंट है, तो सल्फर तो मरीन एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, उसको नहीं कर सकते। सपोज कुछ और है, आयरन ओर है, कोई भी ओर है, दूसरा ओर है, उसका हमने वॉशिंग को पानी में डालना है। अब वो नॉन हार्मफुल है और वो है ही नहीं, या वो है, सपोज वो कार्गो रेसिड्यू है या नहीं है और ये है, तो दोनों आर नॉट हार्मफुल टू मरीन एनवायरनमेंट। तो आउटसाइड स्पेशल एरिया हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं पानी में, प्रोवाइडेड यू आर ग्रेटर देन इक्वल टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम नियरेस्ट लैंड एंड यूर एंड रूम, तब हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल एरिया में आके उसका कुछ कंडीशन चेंज हो जाता है। स्पेशल एरिया में इफ यू सी द कंडीशन हैज चेंज, जो कार्गो रेसिड्यूज नॉट कंटेन इन वॉश वाटर है उसको तो हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन जो कार्गो रेसिड्यूज कंटेन इन वॉश वाटर है हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। बट वो क्या कंडीशन में कर सकते हैं? कंडीशन ये है, ये वाला, डिस्चार्ज ओनली परमिटेड इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ग्रेटर देन इक्वल टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम नियरेस्ट लैंड एंड रूट। अब ये स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस का मतलब है अब स्पेशल एरिया के अंदर हो और उसी के अंदर ट्रेड कर रहे हो, 6 महीने से स्पेशल एरिया के अंदर ही करो, जैसे ब्लैक सी के अंदर ही ट्रेड कर रहे हो, डार्डनल बॉस्फोरस से एंटर कर गए टर्की के थ्रू, अब वहीं ट्रेड कर रहे हो, वहीं एक पोर्ट से लोड कर रहे हो, दूसरे में डिस्चार्ज कर रहे हो, और पोर्ट फैसिलिटी में रिसेप्शन फैसिलिटी नहीं है, तो क्या करोगे? कार्गो आ गया उसके डिस्चार्ज में, तो उसको हम शोर को दे सकते हैं। अब शोर को हम दे तो सकते हैं लेकिन वहाँ शोर फैसिलिटी ही नहीं है, तब क्या कर सकते हो? तब पानी में डिस्चार्ज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर ग्रेटर देन 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम नियरेस्ट लैंड एंड एंड रूट। इसका मतलब ये है। लेकिन फॉर ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स अगर कार्गो रेसिड्यू है या नहीं है वॉश वाटर में, दोनों हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते। दोनों कंडीशन में वी कैन नॉट डिस्चार्ज द कार्गो रेसिड्यूज विच आर नॉन HME। यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? यहाँ कोई डाउट है? हाँ भाई, सर यहाँ तक समझ कार्गो आ गया? रेसिड्यूज, सर ये बेसिकली कार्गो रेसिड्यूज दिखा रहे हैं। कार्गो रेसिड्यू 1 का मतलब है दीज सब्सटेंसेस मस्ट नॉट बी हार्मफुल टू मरीन एनवायरनमेंट, नॉन HME। और वो 2 कंडीशन जो दी हुई थी यहाँ दी हुई है ना, 2 कंडीशन, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस नंबर 2 यहाँ दिया है। तो 2 का मतलब ये लिखा है, पढ़ के सुनाता हूँ। According to regulation MARPOL Annex 5, the discharge shall be only allowed if both the port of loading, departure and next port of destination are within special area and the ship will not transit outside the special area between these ports. एंड बी कंडीशन है जहां कोई एडिक्वेट रिसेप्शन फैसिलिटी नहीं है इन पोर्ट में, तब क्या करो? तो ये तभी कर रहे हैं कि जब कार्गो रेसिड्यू मिल गया आपके वॉश वाटर में, तो वो कार्गो तो बाहर जाएगा, तो उसको तो डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो दे विल बी अलाउड टू डिस्चार्ज ओनली व्हेन वी आर मोर देन 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम नियरेस्ट लैंड एंड रूट।
बाकी इसमें तो पानी है तो उसको ड्रेन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कार्गो रेजिड्यू तो है ही नहीं, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ कार्गो रेजिड्यू इकट्ठे हो गए तो उसको कहाँ से डिस्चार्ज करो, उसके लिए इन्होंने कंडीशन कर दिया है। अब आता है क्लीनिंग एजेंट। कई बार हम लोग टैंक साफ करने के लिए टीपॉल यूज करते हैं, तो वो क्लीनिंग एजेंट है। अब ये क्लीनिंग एजेंट जब हम आपको टैंक क्लीन कर रहे हैं, वो नॉन हजार्डस टू मरीन एनवायरनमेंट और नॉन एचएमई होना चाहिए। अगर हमने होल्ड उससे साफ किया, सपोज हमने एक टीपॉल डाल के पानी से होल्ड साफ किया, क्योंकि मिट्टी इट्टी है, तो मिट्टी तो निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने क्लीनिंग एजेंट डाला तो वो क्लीनिंग एजेंट जो नॉन हार्मफुल है और होल्ड साफ किया, तो उसको हम आउटसाइड स्पेशल एरिया डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर हमने डेक साफ किया उससे, उसी क्लीनिंग एजेंट से, टीपॉल से, सुपर स्ट्रक्चर को भी साफ किया, तो हम डिस्चार्ज कर सकते हैं कहीं भी, चाहे एंकरेज में हो या सेलिंग में, हम कर सकते हैं आउटसाइड स्पेशल एरिया। इनसाइड स्पेशल एरिया में हम डिस्चार्ज कर सकते हैं जब हमने सुपर स्ट्रक्चर साफ किया या डेक साफ किया टीपॉल से नॉन एचएमई। लेकिन अगर हम ये स्पेशल एरिया हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर होल्ड का हमने पानी साफ करना है, होल्ड साफ किया क्लीनिंग एजेंट से जो नॉन एचएमई है जैसे टीपॉल है, और वो एरिया आ जाता है स्पेशल एरिया में, तब क्या करोगे? तो डिस्चार्ज विल ओनली बी परमिटेड अगर आपका लोड पोर्ट एंड डिस्चार्ज पोर्ट स्पेशल एरिया में ही हो और आप वहीं ट्रेड कर रहे हो, एंड शोर रिसेप्शन फैसिलिटी नहीं है इसको कलेक्ट करने के लिए। तो जब आप डिस्चार्ज करोगे, that should be greater than equal to 12 nautical miles from nearest land and you have to be en route. लेकिन फॉर ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स एंड ऑफशोर सप्लाई वेसल्स, वहां आप ना इधर अपना होल्ड साफ कर सकते हो टीपॉल से, वो करोगे तो आपको पानी शोर रिसेप्शन फैसिलिटी को बारिश में डाल के देना पड़ेगा, पानी समुद्र में नहीं कर सकते। सिमिलरली सुपर स्ट्रक्चर भी साफ करके पानी में नहीं डाल सकते अगर टीपॉल सब यूज कर रहे हो, ये डिस्चार्ज प्रोहिबिटेड है। दिस वाज योर क्लीनिंग एजेंट। अब आता है कैरकेसेस ऑफ एनिमल्स, मतलब जो कैटल कैरियर है उसमें जानवर मर जाते हैं तो आप पानी में फेंक देते थे, तो जो मर गए हैं वॉयज में उनको कैसे डिस्चार्ज करें? तो आउटसाइड स्पेशल एरिया हम फेंक तो सकते हैं, बट उन्होंने क्राइटेरिया नहीं डाला कि कितनी दूर फेंकेंगे, कितनी दूर लैंड को। उन्होंने लिखा एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम नियरेस्ट लैंड एंड यू हैव टू डू एन रूट, एंकर पे नहीं फेंक सकते। लेकिन अगर आप स्पेशल एरिया में हो तो क्या आप वो एनिमल को फेंक सकते हो? नहीं फेंक सकते, मरे हुए एनिमल को नहीं फेंक सकते स्पेशल एरिया में। ये वाला है लाल। क्या आपने जानवर पाले हुए हैं ऑफशोर प्लेटफॉर्म में, वो मर गए, अब कहाँ कहाँ फेंकोगे? समुद्र में नहीं फेंक सकते, आपको ऑफशोर सप्लाई वेसल को देना पड़ेगा और वो जाके किनारे में देगा, समुद्र में नहीं फेंक सकते। ये नहीं कि आपने सप्लाई वेसल ले दिया उसने पानी फेंक दिया, वो भी अलाउड नहीं है। अगर वो नियर है 500 मीटर उसके पास, ऑफशोर प्लेटफॉर्म के पास, लेकिन वो ऑफशोर सप्लाई वेसल अगर दूर निकल गया और आप 12 माइल से दूर हो, तब आप डिस्चार्ज कर सकते हो, क्योंकि वो अलाउड है। यहाँ लिखा हुआ है डिस्चार्ज परमिटेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम नियरेस्ट लैंड एंड एन रूट। तो ऑफशोर सप्लाई वेसल उसको दूर लेके पानी फेंक देगा, वो अलाउड है, बट प्लेटफॉर्म के पास 500 मीटर में नहीं फेंक सकता। तो आखिरी पे आते हैं। नेक्स्ट आता है ऑल अदर गार्बेज, जैसे आपके प्लास्टिक हो, डोमेस्टिक वेस्ट हो, कुकिंग ऑयल हो, या नेट हो, फिशिंग नेट हो, फिशिंग हुक्स हो, इंसिनरेटर एशेस हो जो आपके फर्नेस के हैं,
ऑपरेशनल वेस्ट हो, फिशिंग गियर हो, ये डिस्चार्ज नहीं कर सकते पानी में किसी हालत में। लाल मतलब कहीं डिस्चार्ज नहीं कर सकते। लाल मतलब यू कैन नॉट डिस्चार्ज इन वाटर। अब आता है मिक्स्ड गार्बेज। सपोज आपने, सर ये एनिमल वाले में, हाँ बोलो एनिमल वाला क्या? एनिमल वाले में सर डिस्चार्ज परमिटेड एज पर फॉर द, सर ये 12 नॉटिकल माइल लिखा नहीं है इसमें। नहीं नहीं, 12 नॉटिकल माइल नहीं, कितना दूर भी फेंक सकते हैं। 12 नॉटिकल माइल नहीं, कहीं कितना दूर भी, जितना दूर फेंक सकते हो फेंक सको, मतलब उसमें कोई मिनिमम नहीं लिखा है। बट 12 अच्छा से आगे कहीं निकालोगे बेटर है, क्योंकि कुछ लोग पकड़ सकते हैं 12, आपको। हाँ, 12 यस के सर। नीचे में अगर आप करोगे तो पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं कि आपने कितना लिखा है। तुम जब फेंकोगे लॉग बुक एंट्री करनी पड़ेगी गार्बेज रिकॉर्ड बुक पे। आप बोलोगे यस 1 सर, नॉटिकल माइल में फेंक दिया है, तब आपको पोर्ट स्टेट कंट्रोल पकड़ सकता है। कर सकते तो हो। नॉर्मली आप ट्राई करोगे 12 से आगे निकालो, है ना। आप ट्राई करोगे ठीक 12 है। से दूर ही करोगे, क्योंकि 12 वाला मिनिमम क्राइटेरिया लिखा है कई चीजों का। तो आप ट्राई करोगे 12 से दूर करोगे, अदरवाइज एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम नियरेस्ट लैंड लिखा। आप 20 माइल दूर फेंको, 25 माइल दूर फेंको, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर 1 माइल दूर बोलो हम तो नियरेस्ट लैंड से बहुत दूर है, तो पकड़े जाओ। प्रैक्टिकली 12 से दूर फेंको, ठीक है। क्योंकि जब एंट्री करोगे तो अब लिख दोगे 2 नॉटिकल माइल पे, हमारे लिए तो बहुत दूर हो गया लैंड से, एज फार एज पॉसिबल हो गया। तो पीएससी आपको ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो नॉर्मली हम 12 से दूर ही फेंकते हैं, क्योंकि ये यहाँ मोरी है, इसमें उन्होंने डिस्चार्ज का डिस्टेंस नहीं लिखा। अब पीएससी किसको सेफ एज फार एज पॉसिबल समझता है, वो तो वही जानेगा ना, आपको परेशान कर देगा उसके लिए। अब आते हैं आखिरी कैटेगरी, मिक्स गार्बेज। सपोज आपने क्लीनिंग एडिटिव मिक्स किया कुकिंग ऑयल के साथ, जो आपके गार्बेज का है, अब पानी में फेंक सकते हो क्या? क्लीनिंग एडिटिव टीपॉल मिक्स कर दिया कुकिंग ऑयल के साथ, पानी फेंक सकते हो क्या? नहीं सर। बोलो, नहीं फेंक सकते, क्योंकि कुकिंग ऑयल जो है वो तो फेंक ही नहीं सकते। तो जो भी उसके साथ मिक्स कर दिया उसका क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है। अगर आपने ग्राउंड वेस्ट जो है, एनिमल वेस्ट को टीपॉल के साथ मिक्स कर दिया, अब उसको पानी फेंकोगे? नहीं फेंक सकते, उसको 12 माइल से दूर पे ही फेंक सकते हो ना, क्योंकि टीपॉल जो है, टीपॉल तो अलाउड है, डिस्चार्ज परमिटेड है, टीपॉल की बात नहीं करते, कुछ और करते हैं। फूड वेस्ट एंड इंसिनेटर एशेस, फूड वेस्ट एंड इंसिनेटर एशेस, अब बताओ मिक्स कर दिया, अब कहाँ फेंकोगे, कितनी दूर पे फेंकोगे? फूड वेस्ट एंड इंसिनेटर एशेस मिक्स कर दिया, अब कहाँ फेंकोगे? सर फेंक नहीं सकते हो कि नहीं फेंक सकते? नहीं फेंक सकते, नहीं क्योंकि सर। ये वाला लेवल लगेगा, हाईएस्ट लेवल लगेगा, उसको शोर को ही देना है, ठीक है। पायरोटेक्निक्स क्या करोगे? पायरोटेक्निक्स किसको दोगे? आपके अशोर। शोर पे सर। पायरोटेक्निक अशोर। किसी को भी दे दो, मेरे शोर वाला आया ले जाओ भाई, मेरा पायरोटेक्निक खत्म हो गया, उठा लो, है ना, यही है। नहीं सर, डेजिग्नेटेड पर्सन होता है ना। हाँ, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर कलेक्शन ऑफ पायरोटेक्निक्स सर और ये ई डेंजरस वेस्ट गुड। पे आएगा ना? ई वेस्ट भी इसमें आएगा, अभी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी इसमें आएगा, प्रोहिबिटेड है, नहीं, ठीक है। इसी पायरोटेक्निक सर में ई वेस्ट में आएगा। ना ना, पायरोटेक्निक ई वेस्ट में नहीं आएगा। ई वेस्ट आपका कौन सा है? कंप्यूटर का पार्ट है, जैसे यस सर। आपका डेस्कटॉप हो गया, स्क्रीन हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब आपका ई वेस्ट में आएगा। उसको उठा के पानी में नहीं फेंक सकते, उसको शोर देना पड़ेगा। पायरोटेक्निक्स ये तो आप किसी को भी दे सकते हो ना, ई वेस्ट को कोई भी उठा के ले जाएगा, कचरा इकट्ठा जो करता है। लेकिन पायरोटेक्निक्स जो लेगा उसके पास अथॉरिटी लेटर होना चाहिए कि ही कैन कलेक्ट। ये नहीं कि आप पायरोटेक्निक्स उसको किसी को भी उठा के दे दो, ठीक है। यस सर। So when the garbage is mixed with or contaminated with other substances prohibited from being discharged, then the more stringent requirement shall apply। मतलब उसमें, जैसे इसमें अगर हमने ई वेस्ट के साथ मिक्स कर दिया तो वो प्रोहिबिटेड है, सो दिस विल अप्लाई।
अब हम नेक्स्ट पे आते सर हैं। ये ऑनलाइन भी होता है सर, स्वच्छ सागर करके एक आता है सर डीजी शिपिंग में। हाँ हाँ, क्या होता है बोलो। सागर के सर एक डी ऑनलाइन सर, ऑनलाइन पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है शिपिंग में जाकर के, स्वच्छ सागर करके आता है, तो वो एजेंट का नंबर देता है डिटेल, और एजेंट ले जाता है सर, फ्रॉड हाँ, तो वाले। उसकी डिटेल आएगी ना। अब जैसे आपको वैक्सीनेशन हम्म, करना है तो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ऐसे थोड़ा जाके वैक्सीनेशन करा लोगे, है ना। तो उसी तरह यस सर। जो आपका डिटेल्ड आएगा कि भाई पायरोटेक्निक्स कौन इकट्ठा कर सकता है, उसके पास आईडी कार्ड होगा, उसके बाद लेटर होगा कि वो कलेक्ट कर सकता है, उसी को दोगे, क्योंकि आपको लॉग एंट्री बनानी पड़ेगी। और अगर वो यस सर। पीएससी ने चेक किया, उसने पूछा किसको दिया, बोले नहीं हमें तो पता ही नहीं, एक बंदा आया था ले गया, तो आपको पीएससी भी ले जाएगा। कहाँ? हवा खिलाने के लिए। ठीक है, तो वो भी ले जाएगा पकड़ के। आपने ऐसे ही किसी को दे दिया तो आपको भी वो ले जाएगा, तो ऐसे किसी को नहीं दे सकते। So when garbage is mixed with contaminated by other harmful substances prohibited from being discharged, then the most stringent requirement will apply. जब आप फूड वेस्ट को स्क्रीन से पास करोगे तो उसकी जाली जो है 25 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। इससे पता लगा गया आपका फूड ग्राउंड हो गया। उसकी जो जाली है स्क्रीन की 25 mm से बड़ी नहीं होगी, उसके थ्रू पास होना चाहिए। नंबर 3, डिस्चार्ज ऑफ इंट्रोड्यूस एवियन प्रोडक्ट्स। एवियन प्रोडक्ट्स का मतलब है अंडे, मुर्गी के अंडे। इन अंटार्कटिक एरिया इज नॉट परमिटेड अनलेस जला दो या ऑटोक्लेव करो या उसको स्टेराइल बना दो। स्टेराइल का मतलब अब वो अंडा उससे नहीं होगा। नहीं तो आप अंडा रख लो, आप उसके ऊपर बैठ जाओ 20 दिन, तो मुर्गी चिक निकल आएगी। स्टेराइल का मतलब उसके ऊपर से, उसके अंदर से चिक नहीं निकलेगी, स्टेराइल हो गया। ठीक है, तो उसको आप या तो जलाओगे, ऑटोक्लेव करोगे, या उसको स्टेराइल कर दोगे, तब फेंक सकते हो, अदरवाइज नहीं फेंक सकते। नहीं तो आपको अंटार्कटिक में मुर्गियां मिलेंगी, तो वो चाहते नहीं कि अंटार्कटिक में मुर्गियां हों। नंबर 4, offshore platforms located 12 nautical miles from nearest land and associated ships including fixed floating platforms engage in exploration or exploitation of seabed mineral resources, जो हमने उन क्लॉज में पढ़ा था। और ships within 500 meters of these platforms, उनके क्राइटेरिया जैसे बताए थे वैसे होंगे। Cargo residues means only those cargo residues that cannot be recovered using commonly available methods of unloading. जो आपने ग्रैब से उठाया जो बच गया उसको कहेंगे कार्गो रेसिड्यू। ठीक है, झाड़ू जब किया उसके बाद जो डस्ट आ गई उसको कार्गो रेसिड्यू नहीं कहेंगे। नंबर 6, नॉन एचबी मतलब दीज शुड नॉट बी हार्मफुल टू मरीन एनवायरमेंट। अब गार्बेज रिकॉर्ड बुक हमारे पहले एक ही होता था पार्ट, अब होता है 2 पार्ट। पार्ट 1 इज garbage other than cargo residues. This is applied to all ships. Part 2 is only for bulk cargoes, उनके cargo residue की बात। So garbage categories has been amended to include e-waste, which is electronic waste, and category of cargo residues has been split into HME and non-HME. और इसके हिसाब से आपके ये कैटेगरीज हैं कार्गो रेसिड्यूज के। A is plastics, B is food waste, C is domestic waste, D is cooking oil, E is incinerator ash, F is operational waste, G is animal carcasses, H is fishing gear, I is electronic waste, J is cargo residues which are non-harmful to marine environment, K is cargo residues harmful to marine environment. तो आज जरा इतना करके आगे हम जरा वीडियो लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए, है ना।